Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is class 7 subject General English. टॉपिक हमारा है 3 क्वेश्चंस. आज हमें पेज नंबर 75 से पढ़ना है. तो लेट अस बिगिन नाउ. The king went out to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो बादशाह इस हरमट के पास गया और बोला, ए अक्लमंद दरवेश, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब जानने आया हूँ. मैं सही चीज़ों को सही वक्त पर करना कैसे सीख सकता हूँ? वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है और वो कौन से काम सबसे ज़्यादा अहम होते हैं? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. इस दरवेश ने राजा की बातें गौर से सुनी लेकिन कुछ न बोला. आप थके हैं, बादशाह ने कहा दरवेश से. मुझे कुदाल दीजिए और अपनी जगह काम करने दीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. शुक्रिया. तो इस दरवेश ने अपना कुदाल बादशाह को दे दिया. राजा को अपनी कुदाल देते हुए फिर वो ज़मीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. जब बादशाह ने 2 कियारियाँ खोद ली तो वो रुक गया और इसने अपने सवालों को दोहराया. तो दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उठ खड़ा हुआ, कुदाल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, अब आप आराम कर लीजिए और मुझे काम करने दीजिए. But the king not give him the spade and continued to dig. लेकिन बादशाह ने उसे कुदाल न दी और काम करना जारी रखा. 1 hour passed. Then in the sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade in the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. 1 घंटा गुजर गया और फिर 1 घंटा. सूरज दरख्तों के पीछे की तरफ नीचे को चला गया और आखिर बादशाह ने कुदाल ज़मीन पर गाड़ दी और बोला, ए अक्लमंद इंसान, मैं आपके पास अपने सवालों का जवाब जानने आया था. अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे सब बता दीजिए और मैं घर लौट जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. इधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, दरवेश ने जवाब दिया. कहा, The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last bleeding stopped. तो बादशाह पीछे की तरफ मुड़ा और उसे एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ आते हुए देखा. इसने हाथ इसके पेट के साथ दबाए हुए थे जिसमें से खून बह रहा था. जब वो बादशाह के नज़दीक आया तो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. राजा और दरवेश ने इस आदमी के कपड़े उतार दिए. इसके पेट पे एक बड़ा ज़ख्म देखा. बादशाह ने इसे धोया और अपने रुमाल के साथ ढक दिया लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था. बादशाह ने फिर से ज़ख्म की मरहम पट्टी की और आखिर खून बहना बंद हो गया. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him, but this time the sun had set and air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who had the strange bearded man lying on the bed was. तो
आदमी ने बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। बादशाह ताज़ा पानी लेकर आया और इसे दे दिया। इस वक्त तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। दरवेश की मदद से बादशाह ने जख्मी आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप पड़ा रहा। राजा, जो अपने सफ़र और उसके काम की वजह से जो उसने किया था थका हुआ था, फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। जब वो जागा तो इसे याद करने में कई मिनट लगे कि वो कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ दाढ़ी वाला अजनबी कौन था। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "I don't know who you and have nothing to forgive for you," said the king. तो मुझे माफ़ कर दीजिए, इस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा जब उसे देखा कि बादशाह जाग उठा था। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, राजा ने कहा। "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not arrested my orders. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as you most faithful servant, and will order my son to do the same. Forgive me." आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी जायदाद छीन ली थी। मैं जानता था कि आप इस हरमट से मिलने अकेले गए हुए थे और मैंने आपको घर वापस जाने तक मारने का इरादा किया हुआ था, लेकिन दिन बीत गया और आप लौट कर ना आए। इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आया और मेरा सामना आपके मुहाफिज हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। मैं ऐसे बच निकला, लेकिन मेरी मौत हो जाती अगर आप मेरे ज़ख्मों की पट्टी न करते। मैं आपको मारना चाहता था, आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी है। अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इसके आपके वफ़ादार गुलाम की तरह आपकी खिदमत करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसे करने का हुक्म दूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।